पधारो मारे देश रे, पधारो मारे हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप नहाटा। हम आज से आपके लिए एक नया धारावाहिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है पधारो हमारे देश। इस धारावाहिक का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के पर्यटन परिदृश्य को आपके सामने प्रस्तुत करना है, साथ ही साथ यहाँ की कला संस्कृति, यहाँ के उत्सव, यहाँ के त्यौहार व यहाँ की रंग बिरंगी जीवन शैली से आपका परिचय करवाना है। इस परिचय के लिए हम आपको लिए चलते हैं राजस्थान की एक लंबी यात्रा पर, जिसकी शुरुआत हम कर रहे हैं विश्व पर्यटन दिवस के शुभ मौके पर, जो कि मनाया जा रहा है जयपुर के विश्व विख्यात सिटी पैलेस में। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं सिटी पैलेस। Is the World Tourism Day. So what do you think about the tourism in Rajasthan, and do you like this? Do I like the tourism here? Yeah, there's lots of good things to see. I think it's a good place to visit. What things attracts to you to come here from United States? Well, we were actually here for work, so now we just have an extra day where we're going sightseeing before we travel home. What you have seen today? Today we went to the fort. Which one? The Aylmer Fort. And then we're working our way into town. So then we've been to the palace, and now we're going to go to the observatory. Yes, I like Jaipur very much. Very beautiful city. What particular things you like most? This palace is very nice. I like elephants. Germany, no elephants. आज विश्व पर्यटन दिवस है। हमारे यहाँ सिटी पैलेस में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अस्थाई प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें भांति भांति के साफे प्रदर्शित किए गए हैं। उनके अलग अलग तरीके के बंदेज हैं, साफे अलग हैं, पगड़ियाँ अलग हैं। जयपुर रियासत की पगड़ी, उदयपुर, कोटा, बूंदी, भरतपुर इत्यादि राजा अलग अलग जो पगड़ी बांधा करते थे, उनके हम चित्रों के माध्यम से उनकी पगड़ियों के, साफों के बंदेज दिखाए हैं। आशा है लोगों को पसंद आएगा।
अभी आपने देखा कि सिटी पैलेस के दीवाने खास में विदेशियों को साफ़ा पहनाकर यहाँ पे स्वागत किया गया। विदेशियों को साफ़े के साथ एंजॉय किया गया और यहाँ साफ़ा जो है वो एक सम्मान का प्रतीक है और यहाँ पर आने वाले विदेशी लोगों को ये पहना करके हम ये दर्शाना चाहते हैं कि वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और पर्यटन के क्षेत्र में उनका जो योगदान है हम उसको भुला नहीं सकते। Yeah, for them is the first experience because it's the first time for them that will be in India. And how they all enjoyed that. Yeah, sure, because you know we didn't finish our trip, but when they saw this show, they said me, please, we can remain till the end of the manifestation. Why? Because they are enjoying. They are for the first time so many colors. So this is because you know in our country we haven't no more this kind of customs or like this. No, that is turbans, but you know also in Italy we have a special customs for during the festival, but it's not like here, you know. So for them this experience is one of the most important and significant experience during this trip because it's not easy to can participate in a one manifestation like this one. So happen one time in the year and they are here. Understand what I mean? We are invited for this Mehndi competitions and all other competitions as it is organized by City Palace. So we are come here for joining the program and we are feeling good. Good place for come. It's very nice and beautiful and I am very enjoying this place.
No, we've really enjoyed India. The people have been very gracious and hospitable, very kind, and enjoyed all the sights, particularly the Taj Mahal. It was absolutely amazing. But I think the people have really made our trip so far. That's Indian culture, and it's different what we have seen up to now all over the world. ये है सर मुग़ल पेंटिंग्स। इसमें हमने रियल जेम्स यूज़ किए हैं। इसमें हल्का हल्का एम्बोस भी किया हुआ है। ये शाहजहां एंड मुमताज़ का पेयर है। इनके बीच में आप ताजमहल देख सकते हैं। और इसमें हमने रूबी और एमराल्ड यूज़ किया है। इस पेंटिंग को बनाने में 40 दिन लगे हैं। क्या कीमत होगी इसकी सर 15,000 रुपये। पूरा हैंड वर्क? हाँ, सारा हैंड वर्क है सर। स्टोन्स कौन से लगे हुए हैं? इसमें रूबी और एमराल्ड है। हाँ सर। वहाँ पे हाँ सर, ये देखिए, ये है एमराल्ड, ये है रूबी, और रूबी एमराल्ड, रूबी एमराल्ड के कॉन्ट्रास्ट से। मैं चावल पर लिखने का काम 18 साल से कर रही हूँ। इसमें मैं पेंट वर्क करती हूँ विद द ब्रश। इसमें मैंने 108 लेटर्स लिखे हैं मैक्सिमम एक ही चावल के दाने पे अराउंड द राइस। और मैंने अलग अलग थीम में भी काम किया, जिसमें पर्यावरण के ऊपर भी एक आर्टिकल बनाया है, जिसका कि पर्यावरण एक चिंतन, मैंने उसको नाम दिया है। और राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, आर वेंकटरमण, सबको मैंने अपना राइस भेंट किया है, उनको अपनी कला दिखाई है। जो क्लिंटन को जो चावल भेंट किया था उस पर 80 अक्षर थे एक ही चावल के दाने पे, वो मैंने उनको भेंट किया था। और उनको फिर मैंने उनका पत्र प्राप्त किया है, जो कि उनके प्रशंसा के रूप में था। से अमेरिका का USA का नेशनल एंथम पूरा राइस पे लिखा हुआ है। ये अलग अलग राइस पे पूरा फ्लैग भी बना हुआ है, पूरा डिज़ाइनिंग करके बनाया हुआ है। ये भारत का नेशनल एंथम है, पूरा चावल के ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पर पांचों जो हमारी न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, ये सब है वो लिखा हुआ। 5 स्तंभ जो हैं लोकतंत्र के, वो पांचों को यहाँ दर्शाया है। और ये पूरा एंथम है। इसमें भारत के जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं 50 ईयर्स के अंदर, 1947 टू 1997 तक, तो उनमें ये जो राष्ट्रपति हैं यहाँ पर, उनके यहाँ पर प्रधानमंत्री, मतलब इनके कार्यकाल में जो प्रधानमंत्री हुए, इनके सबके नाम है। और ये 50 इवेंट्स हैं, जो हर साल का एक इवेंट, मुख्य इवेंट, जैसे 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो भारत स्वतंत्र इसमें लिखा हुआ 1947। ऐसे ये 50 इवेंट्स हैं पूरे। ये बीच में तिरंगा है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है इसके अंदर। और ऐसे ही 2 ट्यूब हैं इसके साथ में, जो कि उसके अंदर भारत की पूरी संविधान की परिभाषा लिखी हुई है। एक ही चावल के ऊपर पूरी परिभाषा लिखी हुई है। इस तरह से ये पूरा भारत में लोकतंत्र के 50 वर्ष करके ये बनाया मैंने। राजस्थान की ये जो ट्रेडिशन है वो कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी। इसके बारे में बहुत सालों से सुनते आ रहे थे, तो बिल्कुल जैसे ही वक्त मिला वैसे ही घूमने का प्रोग्राम बनाया और जयपुर आ गए। यानी स्पेशली घूमने के लिए ही आए थे। चालू जयपुर से किया है, अब आगे बाकी भी जितना उदयपुर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, वो अगली ट्रिप में वो करेंगे। आपको कैसा लगा? जयपुर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ट्रेडिशन मेंटेन्ड है अभी तक। खास यही देखने आए थे, जो सुना था वो देखने आए थे।
from you are coming? Germany. From Germany. Yeah. Today is the World Tourism Day. So what do you think about the tourism in Rajasthan? Oh, it's our first day here, and we really enjoy it so far. You are enjoying it? Yeah, very much. How you like it? It's good. Rajasthan is good. It's very exotic compared to Germany. कठपुतली का तमाशा भी आकर्षण का केंद्र रहेगा, ऐसा मुझे अनुमान है। टूरिस्टों को दिखाने के लिए ये सब व्यवस्था की गई। अभी आपने देखा राजस्थान की कला और संस्कृति के भिन्न भिन्न रूपों को, जिसे देखकर हमारे देशी विदेशी पर्यटक मोहित से हो गए थे। इसी अनमोल खजाने को और इन्हीं अनमोल मोतियों को समेटने के लिए अगले सप्ताह से हम इस यात्रा को प्रारंभ करेंगे, जिसमें हमें आपके विचार और सुझावों की हमेशा प्रतीक्षा रहेगी। हमारा पता है कंचन कला मंदिर, D92, स्कीम नंबर 10B, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर 302018। आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।